sentence completion. Yes, say. Yeah, we did this sentence completion, then picture comprehension, reading, writing. So we have a 45 minutes to 1 hour practice session every day, which we do. Very nice. First we do reading, then writing, then dictation, then picture comprehension. Then we will make some changes like numbers or numericals, how to say the numbers, sequences, Okay. and yeah, we also had been to NIMHANS for this disability certificate. So there also they did the same thing. 1-step command, 2-step command, and this word repetition, very complex word repetition. They have given 5.5. Yeah, they have given 5.5. 5.5 for what? Total speech analysis, Westerplace battery test. WAB. Okay. Yes. So they have given 5.5. So all that, like I have made a list of what all activities we are doing. 3 or 4 we maintain constant. Rest we add 1 per day. Okay. 1 activity every day we add. So by then it is 45 minutes to 1 hour. In fact, up to 1.5 hours he is alert and he can respond well. That's good. Okay, nice. Okay. Yeah. Goyal ji? He is coming. Huh? Yeah, sure. Shruti ji? Yes. Yes, ma'am. Hello. Good afternoon. How are you all? Very fine, ma'am. How are you? Good afternoon. कैसे चल रहा है practice? Ma'am, during the last week, we practiced 3-step and 4-step commands and the naming words as you suggested. Yeah. In like he's comfortable with the 3-step commands, but in the 4-step commands, what I noticed was that whenever I tell him to like say his name or say namaste in between, so he misses those. Only those. Okay, type in of commands. 3-step commands. No, in 4-step commands. 4-step commands. Okay. Because Okay. 3-step commands, he's okay with that. And as far as naming is concerned, the ordinary objects which we are using daily, then he's able to name them. But the ones we have not used, like after his stroke, I have not told him about a viper, what a viper does. He was not able to tell the name of the viper. Okay. So that kind of objects he was not able to identify. Fine. Okay. So any other task you did? Yeah, we did writing as well. So I told him to write 5 lines about himself and about my son. So he wrote himself, like and the spellings were also correct and the comprehension was also correct. Okay. On the writing part, we were able to do only that much because we don't find that much of time. Okay. हफ्ते भर में हमने जो डिस्कस किया था संडे को लास्ट, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको महसूस हुई या कुछ डाउट्स हैं आपको? नहीं मैम, बस वही 4-स्टेप कमांड में जैसे मैंने आपको बताया कि अपना नाम बोलते हुए या फिर नमस्ते करूँ, जो भी कुछ बोलने से रिलेटेड बोलती हूँ वो बीच में से गायब हो जाता है. ओके, सो आपको लगता है कि जो बोलने से रिलेटेड जो मोटर एक्टिविटी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत लगती है. ठीक है. एनीवेज, आपको अगर याद हो तो हमने शायद 3-स्टेप कमांड्स पे मेजर फोकस करने कहा था, 4-स्टेप स्टार्ट करने को कहा था. So it is okay. 3-step he was comfortable with, so I started with 4 steps. Very nice. ठीक है, अच्छा जा रहा है. ओके. विजय लक्ष्मी जी हैं यहाँ पर? हेलो. हाँ, यस मैम. कैसे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया मैडम. अगर आप मेरे को 2 मिनट दें तो मैं अपने ब्रदर को कनेक्ट कर सकती हूँ. आप मीनवाइल किसी और से बात कर लें. मैं आई विल ट्राई टू हिम. ठीक है. ओके, चलेगा. मैं आप अभी कर ट्राई लीजिए. करती हूँ कि सो दैट ही कैन जॉइन. श्योर कर लीजिए. हाँ जी. थैंक यू. ओके, ठीक है. श्रुति जी और गोयल जी, आप में से किसी को कुछ सवाल है लास्ट सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. जी बोलिए. मेरी रिक्वेस्ट थी मैम कि जैसे आपने बोला था ना कि आप कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड करेंगे. हाँ, राइट. वो प्लीज आप ग्रुप पे अगर सेंड कर देते तो जी, यस, वर्कशीट्स भेजना है मुझे आपको. आप मुझे पर्सनली भी एक मैसेज करके रखना, क्योंकि क्या है, एक वर्कशीट जो है वो सबके लिए कॉमन नहीं रहेगी. ठीक है. सो उस हिसाब से मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी और जो कॉमन है वो ग्रुप पे भेज दूंगी. ठीक है. ओके, ठीक है. हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? हाय,
कैसे हो आप? Hi, how about you? आई एम फाइन। प्रैक्टिस किया आपने? ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಸ್ವಲ್ಪ. So So how you will tell that in English? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. अच्छा, इंग्लिश बोल सकते हो आप? थोड़ा थोड़ा. अच्छा। थोड़ा ओके ओके। थोड़ा Practice. He used 3 languages in one sentence. ओके फाइन, ठीक है। सो हम शुरू करें आज का सेशन, आगे बढ़ते हैं, है ना? 1 मिनट, जयलक्ष्मी जी ऐड हो रहे हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ಶುರು ಕರೆ ಅಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುರು ಕರೆ. ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन। वो अच्छा। जो असिस्टेंट है ना, उसको जूम पे कनेक्ट करना नहीं आ रहा। अच्छा कोई ठीक बात है, नहीं, कोई बात कोई नहीं, बात आप नहीं, अटेंड कर लीजिए। हाँ मैं अटेंड करती हूँ। जी बस मैंने जैसे हाँ, आपको बताया भी था कि नेमिंग, जैसे मैं उनको अभी ये बोलती हूँ कि हम खाना कैसे खाते हैं, मतलब हिंट हाँ। देके स्पून का, तो ही इज एबल टू राइट स्पून। ठीक है, अगर He मैं is ऐसे able to सिर्फ write? बोलूं स्पून, हाँ एबल टू राइट स्पून, अच्छा बट नॉट एबल टू स्पीक। अच्छा। हाँ, मैं पानी किसमें पीते हैं, तो मैं पानी किसमें पीते हैं अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ उनको, तो ही इज एबल टू राइट ग्लास। ओके, अच्छा आप दिखाते हैं तब लिख पाते हैं वो? हाँ, तब लिख पाते हैं। अच्छा। और जो 1 स्टेप और 2 स्टेप कमांड की बात थी, जैसे मैं कहती हूँ हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर कर देते हैं, आंखें बंद करो, हाथ ऊपर करके आंखें बंद करो, तो वो ये दोनों कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार मैं कहती हूँ अपने हाथ से बालों को छुओ, तो वो अपना बाल मेरे को दिखा देते हैं, बट अच्छा। हाथ कई बार रख देते हैं, कई बार नहीं रखते हैं। तो 2 स्टेप अपने कमांड्स प्रश्नों को- बेसिकली अफेक्टेड हैं। 2 स्टेप कमांड्स पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ घड़ी दिखाओ, तो घड़ी बता देंगे ये लगी हुई है। दरवाजा दिखाओ, दरवाजा बता देंगे। तो इस तरीके से तो कर देते हैं। अपनी शर्ट की कॉलर पकड़ो, पकड़ लेते हैं। मतलब ठीक है। पूरा लंबा सेंटेंस इज एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन हो सकता है हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। 2 स्टेप से स्टार्ट कीजिए। आप सिंपल सेंटेंसेस समझ रहे हैं, राइट? हाँ, सिंपल सेंटेंस समझ रहे हैं। थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालिए, सेंटेंसेस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी डालिए। कोई अनफेमिलियर सिंपल सेंटेंस भी अनफेमिलियर, जो कि बहुत ठीक ज्यादा है। यूज में नहीं आते हैं, वैसे कोई हाँ। वाक्य बोल दें, या फिर 2 स्टेप कमांड, 2 चीजें एक साथ। हाँ, ठीक है, नहीं, जैसे उसकी मैं प्रैक्टिस पूछती हूँ करवाइए। कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट कितने बजे आता है, इज एबल टू राइट 9। अच्छा, मतलब समझते हैं, सिंपल इजी कमांड वो समझते हैं। समझ रहे हैं, राइट? हाँ, कितने बजे उठते हैं, 6 बजे लिख देते हैं। ऐसे ठीक तो है। लिख देते हैं वो, ठीक है। पर और ये चीज जो है ना, बोल नहीं सिंपल पाते कुछ कमांड्स और ऑडिटरी कमांड्स जो है बेसिकली सुनकर समझने वाली, ये सभी के लिए कॉमन है ये बात, कि ऐसी चीजें आप सिर्फ बोलकर ही उनको जवाब देना है, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, जो अफेजिया थोड़े से सिवेरिटी जिसमें ज्यादा है, वो लोग सारे शब्द नहीं बोल पाते हैं डेफिनेटली, तो हम लोग पॉइंट आउट करने को बोल सकते हैं। जैसे आपको याद हो, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने एक 3 से 4 चित्र दिखाए थे। सो उसमें से आप उनके सामने कम से कम 2 कार्ड्स रखिए या 3 कार्ड्स रखिए, 3 फ्रूट्स के कार्ड रखे मान लेते हैं, और हमने उसमें से एक फ्रूट उनको पॉइंट आउट करने बोला है कि इन 3 फलों में से आम दिखाइए, तो उनको हाँ, वो सिर्फ कर देंगे। पॉइंट आउट करना है। ऐसे करके आम और अंगूर दिखाइए, ठीक है? सो आम और अंगूर पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, सिर्फ बोलना है ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये मैडम ऑप्शन देते हैं ना, हाँ। ही कैन डू इट। ठीक है, तो ऑप्शन ये में मैं सभी अगर के लिए है। मैंने ऐसा करा कि 5 चीजें रखी, 5 ऑब्जेक्ट, चाकू, कैंची, कुछ फल और कुछ, तो मैं उनसे बोलती हूँ अगर कि इसमें चाकू उठाइए, चाकू उठा लेंगे। चाकू को ग्लास में डालिए, ग्लास में डाल देंगे। वो सब कर लेते हैं वो, पर ठीक है। बोलते नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो ये वाला जो एक्टिविटी है, इसका गोल है सुनकर समझना, बोलने वाले भी और गोल्स आएंगे। ठीक है, ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, क्योंकि वो भी एक भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत जरूरी चीज है वो भी, सुनकर चीजों को समझना। सो उस पे काम करना है आपको। सो आई होप आप सबको एक ओवरऑल
इसका आइडिया है। कुछ डाउट्स हो तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। तो हम आज के सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके ओके मैम। ओके, Okay. आई थिंक आप 3 लोग ही ज्वाइन हुए हैं आज। हम आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1:12। ओके, सो आई विल शेयर वन पावर पॉइंट अगेन। ओके, प्लीज लेट मी नो, आर यू एबल टू, आप सब Yes. देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। ठीक है। एक मिनट दीजिए, लोड हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलिए। वेस्ट ऑफ फेसिया बैटरी टेस्ट ये जो होता है ये तो बेसिक होता है क्या फेसिया टेस्ट करने के लिए? अफेजिया टेस्ट करने के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ओके। है ना? इससे पता चलता है कि कौन से टाइप का अफेजिया है। ठीक है, सो ये यूजुअली करते हैं प्रोफेशनल्स देखने के लिए कि कौन से टाइप ऑफ अफेजिया में फॉल कर रहा है, फ्लुएंट है कि नॉन फ्लुएंट है, फ्लुएंट नॉन फ्लुएंट भी है तो उसके अंदर भी कौन सा पर्टिकुलर टाइप है। सो उससे पता चल जाता है कि किस एस्पेक्ट में हमें ज्यादा काम करना है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। सो आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? यस। ओके, Oh, sure. Oh, sure. जरूर Oh, sure. जरूर। Oh, sure. okay, I think there's some problem. ओके, सो सब लोग देख पा रहे हैं? हेलो? हाँ जी, देख पा रहे हैं। Are you ओके, able to see? Yes. Yes. ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन पे, मतलब सुनकर समझना, और नेमिंग पर थोड़ा काम किया था, राइट? आज हम ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन पे पिछली बार काफी सारा डिस्कशन हो गया था, तो मुझे लगता है आप सबको एक आइडिया मिल गया होगा। तो आज हम रिपीटेशन पर काम करेंगे, शब्द और वाक्य दोहराना, ठीक है। फ्लुएंसी पर काम करेंगे कि भाषा का प्रवाह कैसा होना चाहिए और वो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, और नेमिंग के कुछ टास्क करेंगे, ठीक है। सो नेमिंग से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओके, ठीक है। ये चित्र पिछली बार भी था, एक बार आप सब इसको एक एक करके रिकॉल करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले गोयल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक एक करके फर्स्ट लाइन में चारों जो है उसका नाम बताएं। सोफा, बेड, हम्म सोफा, बेड, अलमारी, और सोने के लिए हम लेते हैं ना मैम, तकिया नहीं, रजाई नहीं ठीक है, मैम, रजाई चल सकता है। रजाई भी टाइप में है जी। कंबल, रजाई, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके, श्रुति जी आप बता सकते हैं गुरुराज जी को? सेकंड लाइन, सेकंड रो। Pant. Head. Hair. Hair. जी एक बार फिर से बोलिए। सेकंड, And then Gotilla. Gotilla. We will try that. Okay. How we will try? For what do we use that? Monday. Monday. Try.
इस पर हम Do you कपड़े use- टांगते हैं, राइट? ಹೌದು ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋದು ಒಂದೇ ಜನ last sound is ra. ಗ Ga, it will come inside, it will come in the word. Can you try? Can you try the first sound? Okay. Can we try? Can I write? Okay, what Can is I the write? word, Shruti ji? Can I write the word spelling? Can Give I the tell you? first letter Q. पहले अक्षर का Q दीजिए. hanging hanging Okay. Hanging. Good. Hanging. Hanging. Okay, fine. ठीक है. Third number. Third picture. Third picture. hair hair Chair. Chair. Okay, fine. Fourth picture. window ಇಲ್ಲ ये लकड़ी का बना हुआ है. Furniture. furniture furniture इसमें हम सामान रख सकते हैं. ಹೌದು that It's a furniture. furniture क्या क्या बोल सकते हैं इसे हम? furniture आप Furniture. श्रुति जी, आप फोनेमिक क्लू दे सकते हैं. साउंड का क्लू दीजिए उन्हें. up up window no. up up B. You can use the sound B. bar What is this? What is this object? What do we call this? See here. What is this? This object. On what do you write? What do you call it? board Board. board You already told the first word. What was the first word you told? up 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 board Cup. Board. up board up अच्छा. board Cupboard. ठीक है. board Okay. board फाइन. ओके, सो ठीक है. थैंक यू. गुड जॉब. अच्छा किया आपने. ओके. गोयल जी, आप थर्ड रो बता सकते हैं एक बार? कंप्यूटर हम्म. बीच में एक बार फैन है, बीच वाला मैं मिस कर रहा हूँ. फैन एक तो लास्ट में लास्ट ये तो वो किसके जैसा लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है. होटल्स में होता है, पुराने होटल्स में. अच्छा, वो है क्या सर्दियों में जो करते वही टाइप में क्या? सर्दियों में जो सर्दियों में यूज करते हैं जिसमें वो सेक करने के लिए. ठीक है. ठीक कुछ है. इस तरीके से बोलते हैं उसको. और ये क्या है सेकंड नंबर? सेकंड में मैं स्किप कर रहा हूँ, यूज तो करते हैं इसका नाम, स्किप कर रहा हूँ मैं. दरवाजों पर होता है. दरवाजों के ऊपर पर्पस में यूज करते हैं. बताओ. दरवाजों के ऊपर किस पर्पस में यूज करते हैं ये? दरवाजा खोलने बंद करने के लिए यूज होता है. खोलने बंद करने के काम आता है. ये वो है क्या, समझ गया. ये वो है गेट खोलने करने के लिए जो करते हैं ना. क्लॉक करके क्या बोलते हैं, क्लॉक नहीं, लॉक टाइप में कुछ भी ऐसे कैसे कैसे करते हैं.
हाँ, इसका आप साउंड से इनको हेल्प कर सकते हो। अभी ये जो हमने इतना जो है हमने हेल्प किया, और जैसे श्रुति जी भी हेल्प कर रहे थे सर की, तो उस दौरान वो क्या कर रहे थे, वो अलग अलग क्लू दे रहे थे कि क्या किस काम आता है, किसका बना होता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो ये सब सिमेंटिक क्लूज में आते हैं, मतलब उस वस्तु से रिलेटेड चीजें क्या है। वैसे ही एक अलग पूरा पाथवे होता है फोनीम का, मतलब उस अक्षर या फिर उस शब्द की लिखावट कैसी है। ठीक है, सो आप उस अक्षर शब्द में जो जो अक्षर आ रहे हैं आप वो बता सकते हो उनको हेल्प के तौर पर। कोशिश करना है कि शुरुआत का जो एकदम पहला अक्षर है वो ना बताएं, थोड़ा आखिरी का बताएं, बीच का बताएं, मात्राएं बताएं। ठीक है, ऐसा बता सकते हो, करिए, कोशिश कीजिए उनकी मदद करने की। बताओ, बीच में ल आता है इसमें। ल नहीं, हिंदी का बता रहे हैं या अंग्रेजी का बता रहे हैं? हिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी। जो भी आ जाए। और क्लू दीजिए, एक और क्लू दीजिए। गेट खोलना है, बंद करना है, ऐसे होता है, देखो। क्लॉक नहीं बोलते, क्लॉक तो नहीं नहीं, बोलते। लॉक नहीं है, लॉक के ऊपर होता है। हैं? लॉक अलग होता है, लॉक के साथ होता है, ऊपर लगा होता है। हाँ मुझे पता है, मैं नाम अच्छा, नहीं है। तीन अक्षर का शब्द है। ठीक है। ल- अच्छा, इससे राइम करने वाला कोई शब्द है क्या? कोई इसके जैसा सुनाई देने वाला कोई शब्द है क्या? बैंगल, बैंगल से ठीक है, राइम थोड़ा करता बहुत हुआ मिलता जुलता है। हिंदी का शब्द, या इंग्लिश भी बोल सकते हो। इंग्लिश भी, बैंगल। इंग्लिश, हाँ। स्किप हो रहा है मेरे माइंड से। ठीक है, मैम फर्स्ट लेटर बोलते ही आ जाता है। हाँ, फर्स्ट लेटर इसलिए नहीं, लास्ट में देना है, लास्ट क्यू है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर इजी बना देता है। दीजिए फर्स्ट लेटर, दीजिए, क्यू दीजिए। हाँ से शुरू होता है। नहीं, मुझे स्किप हो रही है। कोशिश कीजिए, जोड़िए। वो बता चुके हैं, तीन अक्षर का है, ह से शुरू होता है, ल आता है उसमें, जोड़िए। लास्ट में ल आता है, बीच में क्या आता है, बीच का कीजिए। हैंड, हाँ समझ गया। हैंड, हैंड। हैंड, आगे जोड़ो। हैंडल। हैंडल, हैंडल, हाँ ठीक हैंडल। है, ओके, गुड जॉब, अच्छा है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा कि क्लू कैसे देना है। नेमिंग तो ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें मदद कैसे कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी। ओके, आपने नेमिंग कराया तो किस तरह से नहीं, अब कराया? जैसे मैडम इसमें जो चीजें जैसे सोफा, कंप्यूटर, फैन और चेयर, ये और टेलीफोन, ये तो वो बता देंगे 100%, क्योंकि मैं ये दिखाती हूँ उन्हें फोन ना, मैं रियली फोन दिखाती हूँ जैसे ऐसे करके, तो वो अपने आप लिख देते हैं, लेकिन आपका वो वीडियो बोलते ऑन कर नहीं है। सकते हो? हाँ जी, आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। जैसे मैं उनको ऐसे फोन दिखाती हूँ, तो ही इज एबल टू राइट फोन। ही इज एबल टू राइट फोन, ओके। हाँ, बट फोन बोलते हमें तो कुछ है ही नहीं मैडम, वो बोलते तो अपनी भाषा में है, मतलब वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। ठीक है, वो मतलब नॉन उनको फ्लुएंसी इसका मतलब उनका है अभी। पता तो है, उनको पता तो है इसका मतलब, बट नॉट एबल टू स्पीक फोन। ठीक है, इनके लिए आप कठिन, देखिए, नेमिंग एक टास्क आपको लेके चलना पड़ेगा। हमें पता है कि उनको चीजें पता है और वो लिख पाएंगे, बट कहीं ना कहीं पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बुलवाएं बुलवाने उनसे। की, हाँ ठीक बिल्कुल है, मैडम। लिखना ठीक है, अच्छी बात है कि वो लिख के बता पा रहे हैं, कम से कम वो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना है। बहुत मदद करने के बाद भी अगर कोई वर्ड नहीं आ पा रहा है तो आप लिख के हेल्प लीजिए कि लिख ठीक के है, बता दो। या कभी लग रहा है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमें नेमिंग में बुलवाने की कोशिश करनी है। यही अभी तो मैडम, है यही ना, प्रॉब्लम आपके है। लिए जितना आप बताते हो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजियर टास्क लेना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे अभी बताइए। हमने किया वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल था, थोड़ा सा। ठीक ठीक है, है, ठीक है, आपको क्या करना है, एकदम फेमिलियर ऑब्जेक्ट लेना है जो ठीक बहुत है। ज्यादा उनकी पहचान की चीजें हैं सबसे पहले, और जो हाँ, छोटे शब्द हो, आसान और छोटे शब्द हो। ठीक है, नेमिंग के कई तरीके होते हैं।
एक आपने जैसे बताया, आप फोन दिखा के बोलते हो कि ये क्या है बताओ, है ना? हाँ इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट नेमिंग, मतलब चीजें दिखा के पूछना। कई बार क्या होता है, हम लिखावट नहीं पहचान पाते, पर जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो हमें याद आ जाती है, रिकॉल हो जाता है। सो ये सब अलग अलग जगह पे रहता है हमारे ब्रेन में, राइट? सो ऑब्जेक्ट नेमिंग अलग है, चित्र दिखाकर पूछना अलग है, ठीक है? सो आप ये ट्राई कीजिए कि छोटे छोटे जो उनसे रिलेटेड, जो जैसे ये दिखाओ, ये क्या है बताना। सो चश्मा, ओके। अभी इसके लिए आप क्लू कैसे देंगे? आपके लिए स्पेसिफिकली मैं कहूंगी फोनेमिक क्लू जो होता है, मतलब कि अक्षरों के बारे में बताना, उस शब्द के बारे में बताना कि वो कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप शुरू में क्लू दीजिए, जैसे गोयल जी को मैंने कहा कि शुरुआत का क्लू नहीं देना है, हाँ नहीं, हैंडल में नहीं बोलना है, लेकिन आपके केस में बोलना पड़ेगा। ठीक है। स्टार्टिंग का क्लू दीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, जब आप शुरुआत करोगे तो एक दो शब्द उनको आएंगे तो खुद में मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ। शुरुआत में मदद थोड़ी ज्यादा करनी है आपको। मैडम मेरे को ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं क्योंकि जब समझ रही जैसे हूँ मैं आपकी उनसे बात। पूछती हूँ आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो आका वाका ऐसे बोलते हैं वो, ठीक है, मतलब द्वार का नहीं बोल पाते, एक तो का नहीं बोल पाते। अब मैं उनको ये टंग की एक्सरसाइज करा रही थी कि दांत के पीछे जीभ लगाएं, ऐसे करें तो ताकि ये पीछे से ऊपर हो, क्योंकि का में वो ऊपर आती टच होनी चाहिए उसके सॉफ्ट पैलेट पे। ये मेरे को फोनेटिक साउंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए उनको साउंड का नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है, कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो मोटर एक्टिविटी में है। मतलब कि जो मोटर पाथवे, उनका ब्रेन का जो मोटर एरिया है, जो आदेश देता है कि हमारे होठ, जीभ, इन सबको जो आदेश इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आपको ये शब्द बोलना है, ये अक्षर बोलना है, वो जो पाथवे है वो अफेक्टेड है। समझ रहे हैं आप? तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आपको इजियर टास्क लेना है शुरुआत में, बहुत इजी टास्क। मैंने आपको कहा था कि चेहरा देख देख के बुलवाने की कोशिश करें। इजी शब्द जैसे बस हो गया, आम हो गया, ठीक है, छोटे छोटे शब्द, कुर्सी, छोटे छोटे शब्द लेके चेहरा दिखा के बुलवाने की कोशिश करें, और स्पेशली रिदम में बुलवाने की कोशिश करें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से भी आपसे इससे रिलेटेड वार्तालाप करूंगी बाद में। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेमिंग के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, इजी से इजी चीजें उनको दिखानी है। ऑब्जेक्ट दिखाना है, मान लेते 5 ऑब्जेक्ट दिखा दीजिए और 5 पिक्चर्स दिखाइए। ठीक है, एक पिक्चर जिसमें और कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ एक ही पिक्चर हो। आम का फोटो है तो आम का ही फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको नेमिंग करा के देखिए, और जितने ज्यादा क्लू आप दे सके अभी वो दीजिए। ठीक है, और इमिटेट कराने की कोशिश कीजिए। मतलब मान लेते हैं कि बहुत सारे क्लू देने के बाद भी नहीं आया तो क्या, छोड़ नहीं देना है। पेन हमारा वर्ड है, मान लेते हैं पेन। तो पेन नहीं बोल पा रहे हैं क्लू देने के बाद भी, तो क्या करना है, नकल करवानी है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो आप बोलिए, पेन, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके, पेन। सो उनको फॉलो करने को बोलिए, आपका लिप मूवमेंट, आपका जो ओरल स्ट्रक्चर का मूवमेंट जैसा हो रहा है वो उनको थोड़ा सा देख देख के फॉलो करने के लिए बोलिए। ठीक है, अभी के लिए इतना करना है आपको। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम जाते हैं, वापस से मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको एक एक करके, करीब 4 से 5 पिक्चर्स होंगे, तो वो आपको बैक टू बैक बताना है। तो सबसे पहले हम गुरुराज जी से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, यस, सो आप ये देख पा रहे हैं? मैंगो, ओके, मैंगो, ठीक है, ठीक है। बर्ड, बर्ड, मैंने कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। बल, फल है, फल, फल, फल। ओके 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 ओके, फाइन। नेक्स्ट, द्राक्षी, 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 द्राक्षी कन्नड़। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जी, बल, बल, फल। कौन सा फल है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आपको पता है क्या?
या फिर इंग्लिश में? English. What is, how do you spell? How do you spell? Sir ಬರುತ್ತೆ last ಅಲ್ಲಿ. You will get sir. साइमल्टेनियसली गोयल जी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं माइक ऑफ करके, है ना? ओके। और विजय लक्ष्मी जी आप पैटर्न देखिएगा कि कैसे मैं हम वही लोग देख रही क्लू हूँ। दे रहे हैं, ठीक है? और पिक्चर कैसा होना चाहिए, जितना रियलिस्टिक। इसको बोलते हैं कॉन्फ्रंटेशन नेमिंग, मतलब सामने कोई चीज आ जाती है तो कैसे उसका नाम लेना है, एट द मोमेंट वो याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ What जी, is this? आपको याद आया क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? Fruit. Which fruit? Right. Good. ओके, Grapes. grapes. Okay, fine. Next. Apple. Very nice. Banana. Okay, Banana. Indo. ठीक है. Okay, wait a minute. Pen. Pen. अच्छा, Paper. Bike. Bag. हाँ एक बार और बोलिए. Vehicle. Bicycle. Vehicle. फाइन, अच्छा किया, अच्छा बता रहे हैं. ओके, थैंक यू. ठीक है, गोयल जी आपकी बारी. यस मैम. या ये बता सकते हैं आप? साइकिल में, बाईसाइकिल. ठीक है, जी ट्रेन. बताते जाइए. हाँ जी, ठीक है. ट्रेन, कार, प्लेन, प्याज, मिर्ची, आलू, ठीक है. नहीं वो एप्पल नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं, Let me concentrate. आराम से. लाल रंग का है, इसका केचप भी होता है, केचप. केचप. एप्पल नहीं, वो टमाटर. जी ठीक है. सो श्रुति जी ये है सिमेंटिक क्लू, मतलब इससे रिलेटेड चीजें हम बोलेंगे. अभी हम शुरुआत में, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा हायर है, ये चीजों को पहचान पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो फोनेमिक क्लू थोड़ा आसान होता है. मतलब जिसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टीज जिनको ज्यादा हो रही है उनको फोनेमिक क्लू ज्यादा देना चाहिए. लेकिन अभी इस स्थिति में आप सिमेंटिक क्लू दीजिए, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप बोल सकते हो. इसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, इसका रंग कैसा है, कौन सी सब्जी में आप, हो सकता है कोई सब्जी आप बनाते हो जिसमें स्पेसिफिकली टमाटर डाला जाता है, तो वो सब्जी बताओ. सो इससे रिलेटेड चीजें आपको इनको क्लू देना है, ऐसा कभी होता है तो. ठीक है, ओके. और फिर नहीं होता है तो जाके फोनेमिक क्लू. ओके, ठीक है. ओके, अच्छा है. एक बार और बताइएगा. यस, बिल्ली. बिल्ली. ठीक है हाथी. जी. अंगूर, ग्रेप्स, आम, मैंगो, ठीक है, संतरा. ठीक है. ओके, अच्छा है. ठीक है. सो ये कॉन्फ्रंटेशन नेमिंग थी बेसिकली. मतलब कोई चीज आपके सामने आ रही है या कोई चित्र आपके सामने आ रहा है तो आप उसको देख के नाम रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं. सो इसकी प्रैक्टिस आपको जितना हो सके करवाना है. ठीक है, मुझे लगता है गोयल जी आप इसमें अच्छा कर रहे हो.
ठीक है, सो आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेमिंग टास्क भी अभी हम डिस्कस करेंगे, उस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे थोड़ा कम करना है, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेमिंग से बेटर है आप इसकी प्रैक्टिस करें, मतलब चित्र देख के बोलने की। वैसे ही गुरुराज जी के साथ आप प्रैक्टिस करना है इसकी, आपको कॉन्फ्रंटेशन नेमिंग की। चित्र Okay. रखना है सामने और जितना हो सके नाम लेना है। रिकॉल थोड़ा सा फास्ट करवाने की अब हमें धीरे धीरे कोशिश करनी है। ठीक है, फेमिलियर चीजें मुझे लगता है आप लोग जानते हैं, अनफेमिलियर चीजों को लाना शुरू कीजिए थोड़ा। न्यूज़पेपर में ढेर सारे पिक्चर्स आते हैं, कलेक्ट कर लीजिए, आप कट करके रख लीजिए साइड में, या मोबाइल फोन्स पे भी बहुत डाउनलोड वगैरह आप कर सकते हो आजकल। सो कलेक्ट करके रखिए और एक एक प्रेजेंट करते जाइए इनके सामने और बुलवाते रहिए। और क्लू देना है, कब देना है, ये आपको केयर गिवर को समझ में आना चाहिए कि क्लू कब देना है। ऐसा नहीं है कि वो बोलना शुरू भी नहीं किए और हमने क्लू दे दिया। कम से कम 2-3 अटेम्प्ट्स उनको लेने दीजिए, देन यू हेल्प हिम। ठीक है, इवन इनके लिए भी गुरुराज जी के लिए भी सिमेंटिक क्लू ज्यादा बेटर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सिमेंटिक क्लू फिर भी नहीं हो रहा है तो फोनेमिक क्लू। फोनेमिक क्लू आप लिख के देते हो क्या? फोनेमिक कई बार तो एक साउंड बता दिया तो पिकअप कर लेते हैं। हाँ, कई बार जो वर्ड लिख के बीच बीच में गैप्स देती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे, तब तो पिकअप कर लेते हैं। अगर तब भी नहीं तो बोलती हूँ GRAPES, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आसानी से पिकअप कर लेते हैं या पिकअप कर लेते हैं। मैम एक डाउट थी इस एक्टिविटी में, कॉन्फ्रंटेशन नेमिंग में पिक्चर मतलब हम आर्टिकल्स को भी ले सकते हैं ना, लाइक अ थिंग एट होम, समथिंग इन किचन, समथिंग व्हिच इज नॉट फेमिलियर। यस, आप पिक्चर नेमिंग की बात कर रहे हो कि रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो? हाँ, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। रियल ऑब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़ा इजी रहते हैं, इसलिए हम रियल ऑब्जेक्ट का भी क्लू बाद में देते हैं। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सिमेंटिक पाथवे में आप क्या क्या क्लू दे सकते हैं। तो उसमें रियल ऑब्जेक्ट भी एक क्लू हम दिखाते हैं, लेकिन वो लास्ट में। हाँ, वो किया है हमने। तो रियल ऑब्जेक्ट्स मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर रिकॉल करेंगे, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर दिखता है पूरा। हाँ, तो रियल ऑब्जेक्ट भी करवाना है और पिक्चर नेमिंग भी करवाना है, दोनों करवाना है। हाँ, ठीक है, ओके। अरोरा जी आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। प्रैक्टिस किया आपने? ओह यस, इट इज सो नाइस। जो मैंने एक वर्ड को मैंने करा, और वन टाइम रिकॉल वेरी स्लो था, एंड और मैंने क्या किया, मैंने एक लाइक ए में हिंदी और इंग्लिश जितने भी वर्ड करा, एंड मैंने इट इज नाइस कि मैंने हमने क्या किया, पहले टाइम नहीं किया, 120 मिनट जितने भी मेरे वर्ड को देखा कि मैं बात कर सकता हूँ और एंड ऑल दैट, तो टेंशन थी। ओके, सो कितने मिनट में रिकॉल किया आपने? 2 मिनट और 1 मिनट? सॉरी, कितने देर में आपने रिकॉल किए वर्ड्स? 1 मिनट, 2 मिनट? जैसे क अक्षर लिया है तो क से कितने? अभी मैं कर रहा हूँ, मैं जो मैंने लाइक 1 वीक मैंने करा, थोड़ा स्लो था, बट राइट नाउ 7 सेकंड। 7 सेकंड और 7 वर्ड्स? सेकंड, एक कोई भी एक वर्ड एक आता है वर्ड तो याद आने में 7 सेकंड लगते हैं। यस। अच्छा, ठीक है, इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, जस्ट ये सोचना है, टाइमर लगाना है 1 मिनट का। 1 मिनट में कितने वर्ड्स आते जा रहे हैं, आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, शब्द कितने याद आए हैं आपको? हाउ मेनी वर्ड्स कुड यू रिकॉल इन अ मिनट? मैंने पहले 20 मिनट 55
55 वर्ड, यस। ओके, ठीक और है। मैं ज्यादा हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ज्यादा इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोशिश कीजिए आपका जो मेन लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ही ज्यादा करना है आपको, और साथ में आपका जो अदर लैंग्वेज है उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए आप। एंड ऑल्सो जो पहले मैंने वर्ड मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने एक और अपने आप देखा कि हाँ ये मैं लाइक कार में कितने पार्ट होता है, आई नो। तो बहुत तरह प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट, I mean, in my mind, I can understand, but then speech, I cannot. तो ये अच्छा था। मैं ये कर रहा हूँ तो that is much better, and मैं जैसे ब्रेन में स्वेटिंग भी हो गई। ओके ठीक है, अच्छी बात है, आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की। ठीक है, कैटेगरी नेमिंग किया आपने? यस मैम, लाइक खाने में क्या क्या है उसको सबके जो नंबर और सारे नाम कर रहा था। जैसे हमने उसके बाद मैंने कार करा किया, और प्लेन में मैंने क्या क्या पार्ट हैं, तो कुछ ना कुछ मगर वो अच्छा था। एंड ऑल्सो ब्रेन में आई टोल्ड यू स्वेटिंग भी हो रही थी। ओके, सो एक नया टाइप हम आज डिस्कस करते हैं, ये सभी के लिए कॉमन है, रिस्पॉन्सिव नेमिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा किसको हेल्प करेगा? तो एक अरोरा जी हैं उनको, गोयल जी हैं उनको, और गुरुराज जी को। आप विजय लक्ष्मी जी, आप ट्राई कर सकते हो एक बार पूछकर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं विजय लक्ष्मी जी? हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, आई विल ट्राई। ओके, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि हो सकता है इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। ओके, किसी का इजियर फॉर्म आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले गुरुराज जी, ठीक है, आपसे पूछूंगी जी, हरे रंग की दो चीजें बताइए। गुरुराज जी। हरे मीन्स green and red. no, ग्रीन कलर की दो चीजें, हरे रंग की दो चीजें। यू कैन ट्रांसलेट इट इन योर लैंग्वेज। yeah, green color. You have to name two objects in green color. Oh, green and then green. याद आ रहा है क्या आपको? हरे रंग की दो चीजें। हाँ, हरे रंग का क्या क्या हो सकता है? When you stand outside, what do you see? What do you see? ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ, when you stand here in the balcony, what do you see in the side next to your house? Green. Green. What is green? What is green in that place? Yellow. No. What is green? Green color. You know, you have done this. What is ठीक green? है, एक काम करते हैं, इनको एग्जाम्पल देते हैं पहले। ओके, श्रुति जी, आपको मैं एक इसमें एक करेक्शन बोलना चाहूंगी। अभी जैसे आपने इनको हेल्प किया कि आप दरवाजे से जब बाहर देखते हो तो सामने क्या दिखता है, राइट? सो ये हेल्प इससे मैच नहीं करता है, हम जो टास्क कराना चाहते हैं ये उससे मैच नहीं करता है। ठीक है, सो आप इसमें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नेमिंग बोलते हैं हम इसको, थोड़ा सा उल्टा घुमा के हमने सवाल पूछा है, बट इनको नेम करना है एक्चुअली। बट हम लोकेशन वगैरह नहीं ज्यादा हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो जो कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब सुनकर समझने वाली जो चीज है, एक तो वो भी आ रहा है कि ये कमांड वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, राइट? और दूसरा कि ये नेम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये दोनों चीजें इसमें कहीं ना कहीं आ रही हैं। ठीक है, सो उन्हें कॉम्प्रिहेंड करने दीजिए। वो अगर लग रहा है कुछ कठिन हो रहा है, थोड़ा सा आसान बना के दीजिए। आप इनको डेमो दीजिए, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ और आप उसका आंसर दीजिए, तो उनके लिए एक डेमो हो जाएगा वो। ठीक है, ओके। श्रुति जी,
आप मुझे पीले रंग की 2 चीजें बताइए। पीले रंग की 2 चीजें, 2 ऑब्जेक्ट्स विथ येलो कलर। येलो कलर में ओके, गोयल जी बता रहे हैं। ओके, गोयल जी बताइए, कंफ्यूजन हो गया, नाम सेम है एक्चुअली। ओके, गोयल जी को बताने देते हैं, फिर गुरुराज जी पे आते हैं। येलो ओके, कलर, गोयल जी, येलो कलर हाँ जी। की 2 चीजें, एक मैं बता देती हूँ, येलो कलर की शिमला मिर्च, पीले रंग की शिमला मिर्च, ठीक है, और क्या हो सकता है? शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च येलो कलर की नहीं होती। होती है, येलो, रेड, ग्रीन, तीनों होती है। हाँ, येलो, और कुछ पीले रंग का होता है जो, आइसक्रीम भी होती है कुछ येलो कलर के बीच में। ठीक है, कौन सी आइसक्रीम होती है वो? पर्टिकुलर आइसक्रीम का नाम बताना पड़ेगा। वो वाली आती है, नींबू, नींबू, नींबू ठीक है, येलो कलर में। नींबू येलो कलर का होता है, करेक्ट। और एक बताना है। येलो कलर का वो होता है, और येलो कलर का पत्ते भी जब झड़ जाते हैं तब येलो कलर के आते हैं। ठीक है, चलेगा। ओके, एक और बताइए, पीले रंग की कोई चीज, तो स्पेसिफिकली येलो कलर की ना, स्पेसिफिक येलो, यस। येलो कलर की जी, याद कीजिए। खाने की, किचन में बहुत सारी चीजें रहती है, खाने की कोई चीजें, मसाले के डब्बे में कोई चीजें, बहुत सारी चीजें रहती हैं। काले तो येलो कलर के, हल्दी, हल्दी ले लो, ठीक है, हल्दी, येलो ठीक कलर है, का ही होता है। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके, सो इस तरह के टास्क कराने हैं आपको, रिस्पॉन्सिव नेमिंग। ओके, सो दिस इज अ हायर फॉर्म ऑफ नेमिंग category. So it is a type of naming, basically confrontation naming, responsive naming. So आपको इस तरह की प्रैक्टिस लेनी है इनसे, और भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गुरुराज जी, बैक टू यू। गुरुराज जी, यस। कोई 2 ठंडी चीजें बताइए, ठंडी चीजें, कोल्ड। Cold. Cold and $200 लिए मैंने, नहीं खुले नहीं है, तुम देखो अगर 15-20 रुपए हैं तो कोई बच्चे। हेलो, विजय लक्ष्मी What जी, is cold? आपका माइक म्यूट कर सकते हैं प्लीज? ओके, थैंक यू। ओके, गुरुराज जी। What is cold? cold and कोल्ड, कोई 2 Cold. ठंडी चीजें, एक ही बता दीजिए, चलिए, एक ठंडी चीज। ice cream. आइसक्रीम, हाँ. ओके, फाइन। और एक बता सकते हैं क्या? करेक्ट है, आइसक्रीम। और कोई ठंडी चीज? Candy. Thandi. ठंडी चीज, Thandi. What else is thandi? आपकी भाषा में बता सकते हो आप। एनीथिंग एल्स? ओके, श्रुति जी, गुरुराज जी के साथ जो है, सो इस तरह के टास्क आप ले सकते हैं इनके साथ। यू गॉट दिस? क्या इस वीक करना ज्यादा है? काम करेंगे। हाँ, इस वीक काम ज्यादा करना काम है ना, करेंगे। 2 हाँ। चीजें नहीं, भले ही एक चीज रिकॉल करवाना है, लेकिन करवाना है। ऐसी कोई चीज जिसका रंग काला है, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी पार्ट जिससे हम बाल्टी उठा सकते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। सो इसमें ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन भी आ रहा है, मतलब सुन के समझनी है वो कमांड, और नेमिंग भी करना है साथ में। हाँ, ठीक है, अरोरा जी। Yes, अरोरा ma'am. जी, यस, आपसे कुछ सवाल करूं? Yes, ma'am. I like it. यस, ऐसी 2 चीजें बताइए जिससे हम लिख सकते हैं। Pen and cycle. पेन एंड Pencil. ओके, पेन एंड पेंसिल, फाइन, ठीक है।
लाल रंग की 2 खाने की चीजें। लाल मिर्ची, लाल ला, रा, राजा राज 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 राजमा राजमा राजमा, ओके। और कोई एक? और में क्या होता है? और तो कुछ नहीं लाल रंग की और खाने की कोई चीज, और क्या हो सकता है? एप्पल ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। सो गुड जॉब, अच्छा है। और भी पूछ रही हूँ आपसे अभी। सो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स था। लाल रंग की 2 चीजें नहीं, लाल रंग की 2 खाने की चीजें बताइए। सो आपको जब लगता है कि 2 चीज ये कवर अप कर पा रहे हैं तो 3rd लेवल पे पहुंच जाइए। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ही इज एबल टू मैनेज, तो मैंने वैसा सवाल किया इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अरोड़ा जी। बारिश में इस्तेमाल होने वाली 3 चीजें बताइए। रेन, कोट या करेक्ट। दूसरा बात में देयर इज अ वाटर प्रूफ बूट, वाटर प्रूफ बूट, ठीक है। बूट एंड मैं हिंदी में और हिंदी में इंग्लिश भूल गया। आपको जो बोलना है बोल सकते हो। अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, ठीक है, या ठीक है, चलेगा। परफेक्ट। सो इस तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अरोड़ा जी। यस मैम। आई थिंक ये हेल्प करेगा आपको। लेकिन आपको इसमें रिकॉल थोड़ा सा फास्ट करना है। आपके साथ एक टाइम कंपोनेंट आपको हमेशा रखना है नेम रिकॉल में, क्योंकि मुझे Okay. लगता है नेम रिकॉल आपका कहीं ना कहीं अच्छा है, बट और थोड़ा जल्दी क्विक रिकॉल चाहिए। ओके, ठीक है। कभी कभी अक्षरों में ऊपर नीचे हो जाता है, सो वो थोड़ा सा उस पे भी गौर करने की कोशिश करें आप। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे। 2 ऐसी चीजें जो हार्ड होती है, हार्ड सब्सटेंस। फ्लोर एंड वॉल। ठीक है, ओके, नाइस। ओके, विजय लक्ष्मी जी, थैंक यू। अरोड़ा जी, विजय लक्ष्मी जी। सो आपने टास्क देखा कैसे करवाया है? देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है ना रिस्पॉन्स कर पाए। ये डिफिकल्ट पड़ेगा उनके लिए हाँ। थोड़ा। ठीक है, सो आप थोड़ा सा इजी टास्क, जो जैसे हरे रंग की 2 चीज, एक चीज, इस रूम में हवा क्या दे रहा है, मतलब जैसे पंखा है या एसी है, बता देते हैं इस हवा रूम में कहाँ से आ हवा रही कहाँ से आ है। रही है। ठीक है, इस हाँ। तरह की नेमिंग भी आप करवा सकते हो, लेकिन पॉइंट आउट नहीं, उसमें उनको नेम करना अच्छा, पड़ेगा। बट ठीक मुझे है। लगता है इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये हाँ, टास्क। तो आप करवा के देखिए, करते हैं क्या मुझे बताइएगा आप बाद में। ठीक है मैम। पर कॉन्फ्रेंटेशन नेमिंग, ऑब्जेक्ट नेमिंग पे आप अभी ज्यादा फोकस कीजिए इनके। ठीक है, ठीक है, और इजियर और फेमिलियर ऑब्जेक्ट नेमिंग। ठीक है, ठीक। अगले टास्क पर हम मूव करते हैं। हमारे पास 5 मिनट ही बचे हैं, 5-10 मिनट। सो नेमिंग में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? तो एक तो हमने आज कॉन्फ्रेंटेशन नेमिंग, मतलब सामने देखकर, चित्र देखकर या ऑब्जेक्ट देखकर नेमिंग देखी है। और दूसरी रिस्पॉन्सिव नेमिंग, मतलब कि अलग तरीके से उसी चीज के बारे में पूछेंगे, कोई उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए, और फिर हमें वो शब्द याद करना है। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा नेमिंग, कैटेगरी नेमिंग, जो लास्ट टाइम अरोड़ा जी को शायद मैंने बताया था। कैटेगरी नेमिंग, सो एक कैटेगरी, एक श्रेणी में कितने ज्यादा आप नाम याद कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल में दूं कि सब्जियों के नाम बताने हैं, 5 सब्जियों के नाम लिखवा लीजिए या बोल लीजिए। लिखने में भी रिकॉल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब राइटिंग की प्रैक्टिस ले रहे हो तो इस तरह की कोई चीज ले सकते हैं, और बोलना भी है, बोल के भी बताना है। सो 5 सब्जियों के नाम, सो आलू, भिंडी, गोभी, जो भी वो खाते हो वो बोल सकते हैं, बट वो कैटेगरी स्पेसिफिक होना चाहिए। सो एक कैटेगरी में आप देखिए 1 मिनट में कितने याद आ रहे हैं, और मुझे अगली बार आप बताइएगा कि 1 मिनट में कोई भी कैटेगरी आप चूज कर लीजिए। कैटेगरी अभी के समय थोड़ी सी फेमिलियर होनी चाहिए। ठीक है, फेमिलियर, इजियर, सब्जी हो गया, रंग हो गया, ठीक है, गाड़ियां हो गई,
एनिमल्स हो गए। सो इजियर कैटेगरीज, फिर हम थोड़ा डिफिकल्ट पे जाएंगे। सो कैटेगरी नेमिंग करवा के देखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करवाइए, जितनी ज्यादा कैटेगरीज आप ले सकें, जितनी आपको याद आए। और उसमें मैक्सिमम कितने जल्दी जल्दी याद कर पा रहे हैं, 1 मिनट में कितने याद कर पा रहे हैं रिकॉल। ओके, विजय लक्ष्मी जी आप भी कैटेगरी नेमिंग जरूर करवा के देखिए। ठीक है। ओके, भले ही ज्यादा नाम ना बोल पाए बट थोड़े बहुत, और क्लूज दीजिए, क्लूज के साथ साथ आप बुलवा के देखिए। ठीक है मैडम, जैसे मैं आम कहती हूँ, आम बहुत सिंपल सा है कि आम, बड़ा आ बोल के ना बाद में मुंह बंद करती हूँ, जैसे आम, देन ही इज एबल टू स्पीक। मैं 1 मिनट वीडियो ऑन कर, हाँ 1 सेकंड। तो वो ऐसे जैसे मैंने बोला आम, तो इस तरह आम बोल लेंगे। ओम, इस तरह ओम भी बोल लेंगे। लेकिन अब जैसे मुझे बॉल बोलना है, ला बोल सकते हैं, वो बा भी बोल सकते हैं और ओ भी बोल सकते हैं, लेकिन बॉल नहीं बोलते। मोटर एक्टिविटी अभी थोड़ा सा कमजोर है ना। हाँ। सो मोटर पाथवे उनका जो जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो चीज नहीं आएगी। सो इनके लिए थोड़ा सा एक इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। हाँ मैडम, वो ठीक है, मेरे को या पता फिर कॉल पे या हम किसी तरह से हम डिस्कशन कर लेंगे। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो MIT हमने आप लास्ट टाइम बोल रहे थे ना, वो इनको बहुत हेल्प करेगी इस समय। और अगर पॉसिबल हो तो आप मेरी डायरेक्ट उनसे एक बार बात जरूर कराना। तो आप मैडम मेरे को बताइए, आप फ्री होंगे 6 बजे? मैं आपको अलग से मैसेज डालती हूँ, हम लोग एक बार वीडियो कॉल करेंगे उनसे, ठीक है? सो ज्यादा बेटर मैं समझ पाऊंगी कि कैसे क्या इनके साथ किया जा सकता है। सो इस सेशन के अतिरिक्त भी उनको एक्स्ट्रा जरूरत है अभी, क्योंकि अभी मुझे लगता है बाकी के जो 3 लोग हैं उनका लेवल थोड़ा सा अप आ गया है। हो सकता है एज फैक्टर भी हो सकता है, एज फैक्टर भी है, और समय भी काफी बीत गया है इन लोगों के स्ट्रोक को हुए। हाँ, उनको अभी 18 महीने हुए हैं। अच्छा, ठीक है। सो इनका अभी इनिशियल थोड़ा सा स्टेज है। सो इनको इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अभी मदद करेंगी। तो एक बार हम अलग से भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है? ओके, सो ठीक है। सो कैटेगरी नेमिंग सबने नोट कर लिया। कैटेगरी नेमिंग पे जरूर काम करें आप लोग, और मुझे बताइएगा अगले सेशन में कि कैसा हो रहा है। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे आज कवर करना चाहती हूँ, हालांकि समय बहुत कम बचा है। ओके, सो अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं। आप देख पा रहे हो इसे? ये स्लाइड देख पा रहे हैं? मदद कैसे करना है, व्हाट ऑल क्लूज यू हैव टू गिव व्हाइल स्टिमुलेटिंग योर सिमेंटिक पाथवे। मतलब सिमेंटिक फीचर एनालिसिस बोला जाता है इसको। मतलब उस टारगेट शब्द से रिलेटेड चीजें हमें उनको बतानी है, जिससे उनको टारगेट शब्द को याद करने में मदद मिले। ठीक है, सो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ इसके साथ। मान लेते हैं हमारा टारगेट वर्ड है एप्पल। एप्पल, सो एप्पल का पिक्चर उनको दिखाया है, और पिक्चर उनको याद, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा वर्ड है, क्या बोलना है, इसको नहीं समझ आ रहा है एप्पल। सो हम क्या करेंगे, 1-2 बार तो उनको कोशिश करने देते हैं। अगर नहीं जम रहा है, फोनीम का इसमें कोई रोल नहीं है, हम इसकी सिमेंटिक पाथवे की बात कर रहे हैं, फोनीम का इसमें रोल नहीं है। सो आप क्या बताओगे, ये एक फ्रूट है, जैसे आप लोग कर ही रहे थे ये, पर अब इसको इंटेंशनली कीजिए। ठीक है, ये एक फल है, ये एक फल की कैटेगरी में आता है, फल की श्रेणी में आता है। याद आ रहा है क्या? कोशिश कीजिए। मान लेते नहीं आया याद। हर क्लू के बाद आपको टारगेट वर्ड पे शिफ्ट करना है। ग्रुप बताया, श्रेणी बताई, उसके बाद टारगेट वर्ड पे जाइए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं। मान लेते नहीं याद आया, एप्पल अभी भी याद नहीं आया, तो बताइए कि ये कहाँ पाया जाता है, स्थान, लोकेशन क्या है इसकी, कहाँ मिलता है। एक तो पेड़ों पर मिलता है, ठीक है, दूसरा फलों की दुकान पर मिलता है, फ्रिज में भी रखा रहता है, फ्रिज में रखते हैं, या डाइनिंग टेबल पे आप रखते हो जहाँ पे, सो वहां मिलता है। ठीक है, सो ऐसे करके आप इसका लोकेशन बताएं। अब क्या आपको याद आया कौन सा शब्द है ये? टारगेट शब्द का फोटो दिखाना है पहले, उसके बाद ही ये सब शुरू करना है। ठीक है, तभी भी याद नहीं आया मान लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज बताइए कि इसके अंदर बीज होती है, सीड्स होती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, इसे हम काट के खाते हैं, छील के भी खाते हैं कुछ लोग। ठीक है, सो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इसके फीचर्स हो गए। इसके अलावा
तब भी शब्द याद नहीं आया तो और क्या क्लू देंगे? इससे संबंधित कोई बात बताइए, इससे एसोसिएटिंग बात बताइए, जैसे कि वो फ्रेज है कि एक एप्पल खाने से आप डॉक्टर क्या आपको जाना नहीं पड़ता है, ऐसा एक इंग्लिश में एक फ्रेज है, राइट? सो वैसा कुछ बताइए आप, लेकिन टारगेट वर्ड नहीं बताना है, कुछ रिलेटेड चीज बताइए कि आज सुबह ही तो हमने खाया था या कल हमने मार्केट से खरीदा था, कुछ रिलेटेड चीज बताइए, ठीक है? फिर क्रिया, मतलब उसका एक्शन कैसा है, हर वर्ड का एक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते हैं हमारा टारगेट वर्ड अगर नाइफ होता, नाइफ चाकू, सो हम उसका एक्शन करके बताते, इससे हम ऐसे करते हैं, ठीक है? सो एप्पल का एक्शन आप ऐसे भी बता सकते हो कि हम इसको ऐसे खाते हैं या फिर हम इसको काट के स्लाइसेस खाते हैं इसके, ठीक है? और ये सब भी बताने के बावजूद अगर आपका टारगेट वर्ड याद नहीं आता है, देन योर रियल ऑब्जेक्ट, वास्तविक वस्तु, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है? सो ये इस तरीके से आपको क्लू देना है इनको, ठीक है? कुछ समझ गए आप लोग? कुछ डिफिकल्टी तो नहीं है? ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट इज 2-3 मिनट और लेंगे हम, फिर हम कंक्लूड करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ पिक्चर, लाइन ड्राइंग्स। अगर इस तरह की लाइन ड्राइंग्स आप कलेक्ट कर सकें तो काफी अच्छा होगा। लाइन ड्राइंग्स या कलरफुल पिक्चर भी चलेगा, रियल पिक्चर भी चलेगा, जैसे रेलवे स्टेशन का एक पिक्चर ले लिया आपने, ठीक है? बस स्टेशन का एक पिक्चर ले लिया, कोई शादी के इवेंट का पिक्चर ले लिया, एनीथिंग, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है। अब इसमें करना क्या है, ये फ्लुएंसी के लिए है, नेमिंग हो गया, अभी फ्लुएंसी मतलब भाषा का प्रवाह अच्छा कैसे करना है, ठीक है? सो आपको क्या करना है, इस तरह के पिक्चर्स जिसमें कई सारी चीजें हो, बहुत डिस्क्रिप्शन करने लायक बहुत सारी चीजें हो, ऐसी पिक्चर सामने रखनी है, और जो भी इंडिविजुअल है उनको बोलना है कि इसके बारे में आप जितना ज्यादा बता सके बताइए। अब सिर्फ नाम नहीं बताना है कि ये शेर है, ये जोकर है, नाम नहीं बताना है, डिस्क्रिप्शन करना है पिक्चर का। जैसे कि अगर ये पिक्चर अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मैं इसके बारे में बोलूंगी, मुझे ये एक सर्कस का पिक्चर लग रहा है। इसमें पिंजरे में एक मास्टर शेर को ट्रेनिंग दे रहा है, कुछ बच्चे जोकर को देख के हंस रहे हैं। सो ये एक फ्लुएंट स्पीच में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं? सिर्फ नेमिंग नहीं कर रही हूँ कि जोकर है, बच्चा है, पिंजरा है, नहीं, फ्लुएंट स्पीच। सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन का जो हमारा गोल है, मोटो है, वो है कि कितनी भाषा का अच्छे से आप प्रवाह, कितना अच्छा है भाषा का, ठीक है? सो अब अभी क्योंकि समय हमारे पास नहीं बचा है, सो हम इसको नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं कुछ और इमेजेस भी इसमें ऐड करूंगी, आप लोग भी कुछ इमेजेस कलेक्ट कीजिए, न्यूज़पेपर में आ सकती है, मैगजीन्स में आ सकती है, या इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है? सो इस तरह की पिक्चर्स कलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन करवाइए, जितना ज्यादा आप बोल सकें उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है? सो ये कराइएगा, मुझे बताइए अगली बार कि कैसा क्या आउटपुट है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में भी हम इसे जरूर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये सभी के लिए है, गोयल जी, गुरुराज जी, अरोरा जी और विजय लक्ष्मी जी, आपके लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है? इमेज दिखाकर आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि कलरफुल इमेज ज्यादा दिखाएं, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे एक डिफरेंस है, कलरफुल इमेज नहीं है ज्यादा मेरे पास, लाइन ड्राइंग्स है, क्योंकि कलर्स हमें क्लू देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? सो आप कलर इमेज भी करवाइए और विदाउट कलर भी करा सकते हो, ठीक है? ठीक है? जिनका लेवल थोड़ा और अप चला गया है, मतलब बेटर है, वो लाइन ड्राइंग पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है? सो आई थिंक सो आपको ये समझ आ गया होगा। किसी को कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको किसी को भी? अरोरा जी, आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन समझ पाए? आप Yes, करते ma'am. हैं क्या ऐसा कुछ प्रैक्टिस? Yes, ma'am. I understand. आप करते हैं इस तरह की कुछ प्रैक्टिस? यहाँ पहले करता था। अच्छा, वापस से शुरू कीजिए एक बार। आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर रुकावट आ जाती है, Correct. राइट? कहीं कहीं पर जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए एक वाक्य का,
वो बहुत अच्छे से नहीं आ पाता है। Okay. ठीक है, सो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्लुएंसी की प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप एक पिक्चर को देख के डिस्क्राइब कीजिए इन लॉन्गर सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, ओके ओके गुरुराज जी आप करेंगे प्रैक्टिस? Picture. Picture. ಹೌದು. श्योर? Picture. Sure. He is very comfortable writing. He is Okay. very comfortable in writing. If he can't say a word, he will write it and read it. ओके, दैट इज अ गुड थिंग, बट बोलने का सब्स्टिट्यूशन राइटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब बहुत समस्या है या बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो एक असिस्टेंस के लिए हम ले सकते हैं राइटिंग को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोलते नहीं आ रहा है इसलिए मैं हमेशा लिख रहा हूँ। हमेशा नहीं, कभी कभी ठीक है, बट अभी हमें स्पीच आउटपुट भी चाहिए। ठीक है, सो आपको ओवरऑल जो हमने आज डिस्कस किया वो सब कीजिए आप इनके साथ, और फ्लुएंसी की भी प्रैक्टिस कीजिए। इजियर सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आप हो सकता है जो छोटे छोटे शब्द होते हैं से, में, पर हिंदी लैंग्वेज में, वैसे ही आपकी भाषा जो भी है उसमें आप करवा सकते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको ऑन द स्पॉट आप करेक्ट करिए और वापस से वो सेंटेंस बुलवाइए। ठीक है, ठीक है, कुछ बोलना चाहते हो? He has memorized some sentences. He was working in Jello app. ओके ओके, अगर मैं नहीं बैठ सकती, वो जेलो ऐप से करते हैं ना, अच्छा वो है, सब Jello मेमोराइज ही कर लिया, वही रिपीट कर रहे हैं सेंटेंसेस। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा है, जेलो ऐप करवा सकते हो आप प्रैक्टिस। ठीक है, ओके गोयल जी आपको कुछ प्रश्न है? यस मैम, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे कभी कोई वर्ड अटक जाता है सपोज कीजिए, तो कोई लेटर्स इंटरचेंज हो जाते हैं। हाँ, लाइक मटर को जगह मरट आ जाएगा सपोज कीजिए, तो उस चीज पे कैसे वर्क कर सकते हैं? ये एक कॉमन फीचर है फेजिया का, एक वर्ड उलटफेर हो जाना। ठीक है, पैराफेजियाज इस तरह के देखे जाते हैं। ठीक है, सो ये आपको जितना हो सके उसको स्लो डाउन कीजिए। अभी के लिए तो इतना ही बताऊंगी, उसको स्लो डाउन कीजिए, ऑन द स्पॉट करेक्ट कीजिए, और वापस से उनको रीअरेंज करने बोलिए। थोड़ा सा उल्टा फेर जो हो जा रहा है, रीअरेंज करने को बोलिए उनको, कि उसकी लिखावट कैसी है वो याद कीजिए, कि आप खुद से ना बोलें, आप बोलें कि मटर अगर बोला है, एक बार वो लिखते कैसे हैं वो याद करो, दिमाग में इमेजिन कीजिए, और फिर आप एक बार और बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे, पैराफेजियाज में और कैसे हेल्प हो सकता है। ठीक है, सो अभी के लिए तो इतना कीजिए, फ्लुएंसी पे जरूर काम कीजिए, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। I hope you enjoyed the session. Yes, ma'am. Very much, ma'am. It was really helpful. Okay, Very that's helpful. good. I hope you Thank all you, are thank you so practicing. much. Thank you, I ma'am. want Thank you you. all to practice Thank so you that so हमें much. कुछ output मिले at the end. Okay, Sure, we are आप doing सब that. कोशिश कीजिए। कुछ डाउट्स होते हैं तो आप पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू, एंड ऑफ कोर्स आई सेंड द वर्कशीट्स आल्सो। कुछ वर्कशीट्स मैं आप लोगों को पर्सनली भी भेज दूंगी और ग्रुप पे भी भेज दूंगी। ठीक है, चलिए हम लोग Okay, ma'am. नेक्स्ट संडे मिलते हैं। टिल देन आप लोग Thank अच्छे you. से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, Thank you, ma'am. हैव अ Thank you, ma'am. नाइस डे एवरीवन। ओके, Thank बाय you. बाय। Bye.